नेल्सन मंडेला रोट एंड आई कोट, एक अच्छा दिमाग और एक अच्छा हृदय हमेशा अजय समीकरण होता है, पर यदि आप इस समीकरण में शिक्षा और कलम की ताकत मिला दें तो ये बेहतर और बेहद खास हो जाता है. It is well said that the main hope of a nation lies in the proper education of its youth. So, this is a talk, this is for you, this is for the youth. So let me start. 3, 2, 1, and here I go. Good evening, everyone. So please be attentive because I have a mathematics problem for you. What will be 112 divided by 2? It is 56 as written in the screen. And it is very, very shocking that 56% of students of grade 8 can't even solve this simple problem. The truth is that more than 50% students in grade 5 cannot read a grade 2 text or solve a simple subtraction problem. The truth is that not every children is learning well in school. This is edu inequity, that is inequity in education. Namaskaram, my name is Anand Joshi, a graduate scholar, Shamlal College Evening, a Teach for India Fellow 2022. My topic is Ed Equity, let the little light shine, where my objective will be Ed Inequity, that is a generalized, a wicked problem, Ed Equity, its impact and effects, and last, are you a leader? So when we talk about education, so I remember a quotation by Jagadish Vasudev where he wrote, and I quote, "Education need not to be a tool for survival for enhancing perception. The children must blossom and flower into great human beings. That is the purpose of education." So जब मैं बात करता हूँ एजुकेशन की नीड की, that what is the purpose of education, तो पहले हमें जान लेना चाहिए कि क्या मिथ्स हैं जो अभी हम सालों तक पढ़ते हुए आए हैं, सालों तक सुनते हुए आए हैं. मिथ कुछ इस तरीके से कि साइंस ऑन द टॉप, कॉमर्स एट द मिड एंड ह्यूमैनिटीज एट द बॉटम. Myth is that कि एजुकेशन सिर्फ स्कूलों में हो सकती है, आपको चीजों को रटना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा आपको ज्यादा समझने के लिए. आपको you must solve these papers to get good marks and grade that will lead to a good job. We have learned, we have heard that theoretical knowledge over the practical knowledge in our Indian education system. तो जब मैं बात करता हूँ भारत की, हम आजादी का 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन जब हम बात करेंगे आजादी की तो भारत सिर्फ एक भूभाग से खंडित नहीं हुआ था, बल्कि शिक्षा जो किसी भी समाज की रीढ़ मानी जाती है वह समय के साथ भारत में बिखरती रही. अगर आज मैं स्थिति को कंपेयर करूं तो मैं मानता हूं कि गुलाम भारत के भारतीयों की तरह ही हमारी स्थिति रह जाएगी, जहां उस समय औपनिवेशिक शासनकाल में जिस तरह वे आजादी और भारतीयता का अनुमान खो चुके थे, ठीक उसी तरह आज 2022 में हम बेहतर शिक्षा यानी एक्सेलेंट एजुकेशन और नेतृत्व करने की क्षमता यानी कि लीडरशिप को खोते जा रहे हैं. क्योंकि तथ्य कुछ इसी प्रकार है. तथ्य कहते हैं कि 30% of the world poorest children live in India. 57% of all 14 to 18 years old cannot solve a simple division problem. 47% of all 14-year-old in India cannot read an English sentence. 75% कभी कॉलेज में एनरोल ही नहीं कर पाते. 67% स्टूडेंट 10th ग्रेड से पहले ही ड्रॉप आउट कर जाते हैं और 25% of those entering the global workforce by 2025 will be Indian. This is the education crisis. And that's why I talk about education inequity. There are more facts. 50% students of grade 5 students cannot read a grade 2 text. 93% of teachers don't pass the central teacher eligibility test. 72% of grade 3 students can't do subtraction and 41% of students are not enrolled in secondary school. This is the situation of India and this is education inequity. So when I talk about this, so let me tell you that जब हम भारत की बात करते हैं तो मैं यहाँ पे एक बात करूंगा ओरिजिन ऑफ अ डिस्ट्रक्टिव एजुकेशन. तो डिस्ट्रक्टिव एजुकेशन के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम इतिहास से सबक सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं और अतीत के पुराने सिक्के वर्तमान में नहीं चलाए जा सकते, लेकिन इतिहास की जड़ों का मजबूत होना जरूरी है जिससे वर्तमान कायम रह सके. तो कारणों को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे बढ़ना पड़ेगा. हमें देखना पड़ेगा ब्रिटिश शासन के दौरान उस ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिसके पास कुछ समस्याएं थी. क्लर्कों की समस्या, इंग्लिश में बात करने वाले लोगों की समस्या, बेंच पर डेस्क पे बैठे रहे काम करने वाले लोगों की समस्या, जिसे सुलझाया थॉमस वेडिंगटन मैकलॉय ने. अब मैकलॉय के मिनट्स में आप देखिए क्या लिखा देखने को मिलता है.
मैक्लॉय के मिनिस्टर में देखने को मिलता है, he said that I propose that we replace her old and ancient education system, her culture, and if the Indian think that all that is foreign and English is good and greater than their own, they will lose their self-esteem, their native culture, and they will become what we want them, a truly dominated nation. So this is the idea of Thomas Babington, where he applied English Education Act 1835. इस एक्ट की वजह से क्या हुआ, इनकी समस्याएं सुधर गई, इनको क्लर्क मिल गए, इनको अंग्रेजी में बात करने वाले लोग मिल गए, इन्होंने एक ऐसी एजुकेशन पद्धति का विकास किया जहाँ पे अंग्रेजी में इंस्ट्रक्शन देके सिखाया जाता था। अब दिक्कत यहाँ पे है, जब हम शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा होती क्या है? शिक्षा वो जो हमें आगे बढ़ने में मदद करे, शिक्षा वो जो हमें बेहतर तरीके सिखाए, शिक्षा वो जो हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाए, उसको नष्ट ना करे। लेकिन एक डेस्क में बैठे बैठे बस सिर्फ किसी के ऑर्डर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना हमारी क्रिएटिविटी को खत्म करना। इंग्लिश उस समय एक पॉपुलर लैंग्वेज नहीं हुआ करती थी, फिर भी इंग्लिश उस समय इंडिया में क्लास की तरह ट्रीट होने लगी, जो सबसे ज्यादा आगे भयावह स्थिति का निर्माण करती है। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा कि दिस इज द ओरिजिन ऑफ अ डिस्ट्रक्टिव एजुकेशन, जो अभी तक चलती आ रही है, सिर्फ थोड़े ही फेरबदल से 75 साल बाद अभी भी हम ऐसे ही शिक्षा पद्धति के एक अंग हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा कि एजुकेशन होती क्या है, क्योंकि जब तक हम नहीं समझेंगे कि एक बेहतर शिक्षा क्या है, शिक्षा होती क्या है, शिक्षा का मकसद क्या है, पर्पस क्या है, तब तक हम नहीं जान पाएंगे कि एक एडु इक्विटी क्या होती है और एडु इनइक्विटी क्या होती है। शिक्षा क्या है? बहुत सारे लोगों ने शिक्षा पे टिप्पणी करी, अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। स्वामी राधाकृष्णन के मुताबिक एजुकेशन इज एक्वायरिंग ऑफ नॉलेज बियॉन्ड व्हाट इज एकेडमिक एंड प्रोफेशनल। एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं एजुकेशन इज एंडलेस जर्नी थ्रू नॉलेज एंड एनलाइटमेंट। एजुकेशन वो है जो हमको कुछ नया करने के लिए प्रेरित करती है। एजुकेशन वो है जो हमें नई चीजें बुनने में तैयार करती है। अब मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूं, हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ऐसी चीजें नहीं हो रही हैं? अगर मैं बात करूं कुछ और डेटास की, तो जितनी स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन उतने इंजीनियर्स भारत एक साल में प्रोड्यूस करता है। ये इंजीनियर्स इतने ज्यादा हैं कि यूएस और चाइना के इंजीनियर्स को मिला दिया जाए तब भी भारत के इंजीनियर्स ज्यादा होंगे। इसका मतलब इंजीनियर्स प्रोड्यूस करने में भारत आगे है। लेकिन जब हम देखते हैं रिसर्च एंड इनोवेशन में, तो रिसर्च एंड इनोवेशन में जो भारत है सबसे पीछे एंड स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है। एंड हम देखते हैं, I would like to have your attention because India has only 257 people per million who research, and India only spend around 0.64% of its GDP on research and development. हम ऐसे किस समाज में रह रहे हैं जहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ावा नहीं दिया जा रहा, जबकि हम कहते हैं अपने आप को हम एक युवा राष्ट्र है। सिंस इंडिपेंडेंस, आजादी से रिपब्लिक ऑफ इंडिया ने 0 नोबेल लॉरेट्स प्रोड्यूस करे इन द फील्ड ऑफ साइंस, जबकि यूएसए ने उसी पीरियड में 100 से ज्यादा किए हैं। AICR की रिपोर्ट के मुताबिक 83% एक बड़ा अमाउंट है। 83% एजुकेटेड इंडियंस एम्प्लॉयबल ही नहीं है, यानी उनके स्किल्स इस लायक नहीं है कि उनको कार्य किया जाए उनके मुताबिक। तो इस शिक्षा का क्या मतलब है? मेरे अनुमान से शिक्षा है जो हमें सिखाती है कि सीखना कैसे है, टू लर्न हाउ टू लर्न। शिक्षा वो है जो बोलती है सा विद्या या विमुक्ति। विद्या वो है जो हमें मुक्ति प्रदान करती है। मुक्ति किससे? मुक्ति हमें हमारी पीड़ाओं से, मुक्ति पॉवर्टी से, गरीबी से, मुक्ति हमारी शंकाओं से, हमारी चिंताओं से, हमारे प्रश्नों से, हमारे सवालों से, और देती है हमें जवाब, आगे बढ़ने की प्रेरणा। भारत बनना चाहता है विश्व गुरु। भारत एक बहुत विश्वगुरु बनना चाहता है। बड़े बड़े सदन पटलों पे इसके बारे में बात की जाती है, लेकिन क्या हम इसके लिए तैयार हैं? हमें सीखना चाहिए अपने एंशिएंट टाइम में। बात करता हूं महाभारत की। यहाँ पे डेफिनेशन बहुत सारी दी है, लेकिन महाभारत का एक किस्सा वाक्य में समझना चाहिए। महाभारत में एक गुरु है द्रोणाचार्य। महाभारत के गुरु द्रोणाचार्य ने अलग अलग शिष्य को उस शिष्य की काबिलियत, कैपेबिलिटी के मुताबिक अलग अलग शिक्षा दी। मूल शिक्षा सभी को एक समान मिली, उसके बाद वो शिक्षा है बदल गई। अर्जुन को धनुर्विद्या, भीष्म को गदा, नकुल को तलवारबाजी, सहदेव को कुल्हाड़ी और युधिष्ठिर को भाला। अगर ये ऐसा नहीं किया जाता तो क्या कौरवों से पांडव जीत पाते? तो बहुत जरूरी है कि हम अपनी स्किल्स को पहचान सकें। ऐसी शिक्षा पद्धति का होना बेहद जरूरी है। बात करते हैं एजुकेशनल इनइक्विटी इन इंडिया। तस्वीरों से साफ जाहिर है कि एजुकेशन इनइक्विटी है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ फूड दैट इज मेल न्यूट्रिशन,
एंड अगर हम बात करते हैं महिलाओं की, क्योंकि संस्कृत में एक श्लोक है, अंधम तमा प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय एवते तमो या ओ विद्यायाम रतः। यानी जो अविद्या की उपासना करते हैं या उसका अनुसरण करते हैं वो तो घोर अंधकार में है, लेकिन जो विद्या की उपासना करते हैं वो उससे भी ज्यादा अंधकार में। इसका मतलब ये है कि जो विद्या की उपासना कर रहे हैं, इसका मतलब जो जानबूझ के गलत चीज को सही माने बैठे हैं वो ज्यादा अंधकार में, क्योंकि वो कभी उस गलत चीज को सही जो गलत चीज है उसको कभी उसको टटोलेंगे नहीं, उस पर क्वेश्चन कभी नहीं करेंगे। सो दैट इज आवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जिस पे कोई भी सवाल ना करके हम 75 साल से उसी को चला रहे हैं, जिसमें बदलाव होने की जरूरत है और काफी कार्य भी किए जा रहे हैं। महिलाओं की स्थिति की बात की जाए तो 20 करोड़ से ज्यादा महिलाएं ऐसी हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन की, उसमें से ज्यादातर जो है यंग महिला है, यानी कि युवा है। 75% महिलाएं ऐसी है जिनकी शादी कम उम्र में हो जाती है, कुछ कुछ की 13 साल में हो जाती है। 46% लड़कियां ऐसी हैं जो अंडर नरिश्ड हैं, उनको ढंग से नरिशमेंट नहीं मिला जाता। 50% लड़कियां ऐसी हैं जो कभी स्कूल नहीं गई, और 25% ही लड़कियां ऐसी हैं जो सिर्फ ग्रेजुएशन कर पाती हैं। This is the reality of education. This is the ground reality. That is why I'm saying that there is the inequality in the education and we must talk about it. मैं बात करता हूं अगर एजुकेशन सिस्टम की। अब थॉमस मैकॉलॉय जो ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान 1835 पे ये लॉ लाते हैं, वहां से ये पद्धति शुरू होती है। यहाँ 5 साल का आईएएस भी आउटडेटेड लगने लगता है। तो एक एजुकेशन सिस्टम जो कितने सालों पुरानों से रखी गई है, जो हमारे भी किसी काम के, इसमें निरंतर बदलाव नहीं हुए, समाज में लगातार बदलाव हुए हैं, हमारी शिक्षा पद्धति में बदलाव नहीं हुए, तो वो शिक्षा पद्धति कैसे चले आ रही है जब हम 5 साल के आईएएस को आउटडेटेड बोलते हैं। अगर 95% संस्कृत में लाने वाला विद्यार्थी संस्कृत में बात नहीं कर सकता, 12-12 साल तक हम अंग्रेजी पढ़ने वाले अंग्रेजी नहीं बोल सकते, तो किस बात की शिक्षा है? अगर 5 साल का बच्चा बिना बुक पढ़े वो अंग्रेजी बोल लेता है, लेकिन 12 साल तक अंग्रेजी पढ़ते हुए बच्चे वो अंग्रेजी बात नहीं कर पाते। मैथ्स का बच्चा a+b का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a² + b² + 2ab भी बोलता है, लेकिन उसको रियल लाइफ के एप्लीकेशन नहीं पता कि वो रियल लाइफ में इसको कहाँ यूज करे। क्या फायदा ऐसे एजुकेशन का जब हम उसको एप्लीकेबल नहीं कर सकते अपने रियल लाइफ में? एजुकेशन का मतलब है जिसको हम सीख के अपने लिए कार्य पे ला सके। टाइम्स ऑफ इंडिया के आंकड़ों के हिसाब से पियोन्स के यानी चौकीदारों के 368 भर्तियों में 1.5 लाख आवेदन आते हैं ग्रेजुएट्स के, और 24,968 आवेदन आते हैं पोस्ट ग्रेजुएट्स के, जिसमें से पीएचडी स्कॉलर्स भी होते हैं। अब यहाँ पे जो इंडियंस है वो अधिकतर 5 से 7 साल तक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, बिकॉज दे हैव अ क्वेश्चन, दे हैव अ रीजन दैट देयर इज अ जॉब सिक्योरिटी। क्या हमको ऐसा नहीं लगता कि हम ज्यादा लापरवाह हो रहे हैं? हम चीजों को लेके काफी लापरवाह हो रहे हैं, क्योंकि हमें जॉब सिक्योरिटी, हम कुछ भी करेंगे हमको जॉब से निकाला नहीं जाएगा, तो दैट इज वेरी सेफ। या फिर हम अपनी स्किल्स को दबा रहे हैं और जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको यूज नहीं कर रहे हैं। समझने की जरूरत है। एंड ये रीजन क्या है? रीजन इसलिए है क्योंकि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, जिसका भी हम स्वॉट एनालिसिस करने वाले हैं, उसने इतना कॉन्फिडेंस ही प्रोवाइड नहीं किया है कि उस कॉन्फिडेंस के बल पे हम कह सके कि व्हाटएवर स्किल आई एम हैविंग मुझे जॉब मिलेगा। So let's do a quick SWOT analysis of our Indian education system. We will talk about strength, weakness, opportunity and threats. इससे पहले हमको जानना चाहिए कि हमारा जो भारत है वो युवा राष्ट्र है। अगर पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में अगर 5 लोगों में से एक लोग चुना जाए तो वो 15 से 24 साल के बीच का निकलेगा। और भारत एक खुशकिस्मत राष्ट्र है जहाँ पे सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन रहती है। 66% ऑफ टोटल पॉपुलेशन जो है वो यूथ है। इसका मतलब क्या है? 80 करोड़ से ज्यादा लोग जो है भारतीय, वो यूथ पॉपुलेशन यानी 35 साल से कम है, यानी बहुत ऊर्जावान है। अब ऐसे राष्ट्र में स्ट्रेंथ और वीकनेस को पता करके हम इसमें फेर बदल कर सकते हैं। साम दंड भेद को अप्लाई करने से पहले हमको स्वेट एनालिसिस करने पे ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। स्ट्रेंथ को जानते हैं तो कुछ स्ट्रेंथ हमारी कंट्रीब्यूशन जो आर्यभट्ट, सर सीवी रमन, एच.जे. भाभा एंड जे.सी. बोस जी ने की है। कुछ और हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, जैसे कि हमारा रिच हेरिटेज एजुकेशन पे, नालंदा विश्वविद्यालय हम बहुत विख्यात है इस मामले में। हमारी प्राइमरी एजुकेशन गुड है, लेकिन अभी हम आगे देखेंगे कैसे वो भी डिट्रोइट हो रही है। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में काफी ज्यादा फोर्स किया जाता है इंफॉर्मेशन पे, दैट इज आवर स्ट्रेंथ। हमारा सब्जेक्ट नॉलेज काफी अच्छा है बाकी कंट्रीज के मुकाबले। एंड अगर हम बात करें तो हमारे पास थ्योरेटिकल नॉलेज काफी अच्छा है।
और एक और स्ट्रेंथ जो सबसे अच्छी है, जो होनी चाहिए भारत जैसे एक जनसंख्या बहुल राष्ट्र में, जो है एजुकेशन का कॉस्ट काफी कम है और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बहुत ज्यादा है, यहाँ तक कि डेवलप्ड कंट्रीज के कंपैरिजन में भी। अब वीकनेस के ऊपर आ जाते हैं। देखो जो स्ट्रेंथ्स है कहीं ना कहीं वो वीकनेस में भी आ जाती है। जैसे कि हम बात करें, हमारे पास बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बट उन इंस्टीट्यूट्स में जो करिकुलम है वो अपग्रेड नहीं हो रहा। दैट इज आवर फर्स्ट वीकनेस, कि हम करिकुलम को अपग्रेड नहीं कर पा रहे। पल पल दुनिया बदल रही है, हमें नहीं पता था कि आज के दिन ट्विटर, इंस्टाग्राम, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कोडिंग, ये सब इतने बड़े करियर ऑप्शन बन जाएंगे। क्या हमारा शिक्षा पद्धति, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, शैक्षिक ढांचा है, क्या वो इसके लिए तैयार है? क्या वो इस तरह के कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे हम इस पे आगे बढ़ सके? जी नहीं, बेहद कम, बहुत कम है। यहाँ पे कोई बेंचमार्क्स नहीं है, कोई कॉमन कोर्स नहीं है, कोई कॉमन एग्जाम नहीं है जिसकी वजह से पूरे नेशन वाइड में एक ही तराजू पे लोगों को तोला जा सके। यहाँ पे लैक ऑफ स्पेशलाइज्ड कोर्स हमें देखने को मिलते हैं, बहुत कम जगह पे है, कोई पैरामीटर्स नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे बड़ी वीकनेस है जो आगे हम थ्रेट में भी पढ़ेंगे, दैट इज इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटरेक्शन। इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट का इंटरेक्शन नहीं है। इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट का इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। हम सीख इसलिए रहे ताकि हम काम कर सके, हम अपनी स्किल्स को यूज कर पाए। अगर हम अपनी स्किल्स को यूज नहीं कर पा रहे, ऐसी शिक्षा का कोई मतलब नहीं रह जाता। एंड भारत में अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटरेक्शन कम है। लोग इंटर्नशिप नहीं करे, लोग फेलोशिप नहीं करे। रिजिडिटी हमारे करिकुलम में, लैक ऑफ पॉलिसी मेकर, स्टेक होल्डर्स का माइंडसेट अलग है। एक स्टेक होल्डर दूसरे स्टेक होल्डर के ऊपर बातें डालता है, तीसरा तीसरे पे डालता है, एंड इन द एंड वो बातें किसी के ऊपर नहीं होती। सो स्टेक होल्डर बहुत तरह के, एक बच्चे के स्टेक होल्डर, उसके पेरेंट्स, उसके फ्रेंड्स, उसके सिबलिंग्स, उसके प्रिंसिपल, उसके बाकी ब्यूरोक्रेट जो पॉलिसी लेवल पे पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं, सारे स्टेक होल्डर है। अब इनका माइंडसेट नहीं है कि वो उस जरिए पे काम करे। लेकिन एक्सेप्टिंग इमीडिएट चेंज, ये सबसे बड़ी वीकनेस है। अभी कोविड-19 में इमीडिएट एक चेंज आया, उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाए। दैट इज आवर वीकनेस इन आवर एजुकेशन सिस्टम, एंड आवर लर्निंग इज ऑल जॉब ओरिएंटेड। एंड व्हाट आर अपॉर्चुनिटीज? तो अगर हम स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखें तो हम जोड़ तोड़ के कुछ अपॉर्चुनिटीज निकाल सकते हैं, लेकिन इस पे काफी काम करना है। भारत एक युवा राष्ट्र है, दैट इज एक रिच ह्यूमन रिसोर्स है इंडिया। यहाँ पे काफी ज्यादा कार्य किया जा सकता है। तो दैट इज आवर फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। और सेकंड अपॉर्चुनिटी इज कि यहाँ पे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स काफी ज्यादा है। दैट मींस हम कैपेबल हैं ऐसे स्टूडेंट्स को निकालने के लिए जो हाईली क्वालिफाइड हो, स्किल्ड हो। तो इस पे हम कार्य करें। अगर इतने हाईली हमारे पे इतने सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, तो उस पे अगर हम कार्य करें तो अच्छे स्टूडेंट्स निकल सकते हैं, जो कल के दिन आगे के दशकों में भारत को नई ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। और हमारा जो करिकुलम है, करिकुलम में बदलाव किए जा सकते हैं। अगर हम देखें न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, जो हमने अपॉर्चुनिटी की तरह ली है, जहाँ पे हम करिकुलम में बदलाव कर रहे हैं ताकि हम अगली शिक्षा पद्धति को अपनाएं और उसको बेहतर बनाएं। और इस पे दोबारा चेंजेस की गुंजाइश रहेंगी। थ्रेट्स की बात कर दें तो जब मैंने थ्रेट बोला था आपको कि इंटरेक्शन बिटवीन द इंडस्ट्री एंड द इंस्टीट्यूट, दिस इज अ वेरी थ्रेट कि अभी जब हम रिसर्च नहीं कर रहे, हम डेवलप नहीं कर रहे अपने स्किल्स को यूज नहीं कर रहे, हम एक्सपीरियंस गेन नहीं कर रहे, तो दैट इज अ बिगेस्ट थ्रेट। क्योंकि हम इनोवेशन नहीं कर रहे। इनोवेशन करेंगे, हमारा इंडिया जो है वो टर्शियरी एंड सेकेंडरी टेक्सचर में पीछे क्यों है? क्योंकि हम ये चीज पे स्पेंड नहीं कर रहे। वी नो दैट इंडिया स्पेंड 0.65% ऑफ इट्स जीडीपी। A threat is that we lack teamwork. हम टीम वर्क में काम नहीं करते। There is a race जो भागे जा रहे हैं, कंपटीशन है। It is not like that. हमें एक साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। और कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं जो हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट जो है भारत को छोड़ के अब्रॉड में एजुकेशन ले रहे हैं। तो जब मैं इसकी बात करता हूँ SWOT एनालिसिस की, तो अब हमको पता है कि हमारी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स क्या है, तब हम काम कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया अपने ऑब्जेक्टिव में कि इट्स अ विकेड प्रॉब्लम। एक चीज नहीं है, काफी ज्यादा चीजें जो आपस में जुड़ी हुई है। हाल ही में कोविड-19 क्राइसिस ने काफी ज्यादा चीजें बदल दी। तो ASER एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 एजुकेशन क्राइसिस एक नाम दिया गया। इसमें हम देखते हैं कि कितना ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है। बात करते हैं तेजस की, जो 10 साल का है, उसके पास स्मार्टफोन नहीं, इसलिए वो ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा। रुद्रा जो 11 साल का है, वो स्कूल पे इनरोल्ड नहीं है क्योंकि उसका स्कूल बंद हो चुका है। प्रेम जो 10 साल का है, उसने ड्रॉप आउट कर लिया क्योंकि उसके पेरेंट्स स्कूल की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। और ऐसे ही 16 करोड़ 8 मिलियन चिल्ड्रन हैं, तेजस, रुद्रा और प्रेम जैसे, जो ऐसे सीवियर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं स्कूल क्लोजर्स की वजह से। एंड दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19।
इसकी वजह से ना सिर्फ अभी उनकी हायर एजुकेशन पे इम्पैक्ट आएगा, बल्कि इसकी वजह से आने वाले टाइम पे इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट होगा, उनके फ्यूचर इनकम लो होंगे, इसके वजह से उनकी वेलबींग पे भी असर पड़ने वाला है। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। ASER की रिपोर्ट के अनुसार, ये ASER रिपोर्ट जो है पूरे भारत में हुई, जिसमें से 25 स्टेट, 3 यूनाइटेड टेरिटरीज एंड 581 डिस्ट्रिक्ट शामिल थे, 17,000 से ज्यादा गांव और 76,000 से ज्यादा हाउस होल्ड, जिसमें से 75,000 से ज्यादा चिल्ड्रन जो 5 से 16 साल के थे, और 7,000 से ज्यादा स्कूल शामिल थे। अब इनकी रिपोर्ट में ये कुछ चीजें सामने आई कि कई बच्चे जो है स्कूल अटेंड नहीं कर रहे। पहली दूसरी क्लास के 1/3 बच्चे, यानी 3 में से 1 बच्चा जो है उसने कभी इन पर्सन क्लास ली ही नहीं है, यानी कभी वो क्लास में इंटरेक्शन उसका हुआ ही नहीं है। तो इससे की फाइंडिंग्स क्या आती हैं? की फाइंडिंग्स ये आई कि गवर्नमेंट स्कूल में एनरोलमेंट बढ़ गया और प्राइवेट स्कूल में कम हो गया। एंड प्राइवेट स्कूल में कम होना एक चौंकाने वाली बात है, क्योंकि 10 साल में पहली बार ये कम हुआ। एंड ट्यूशन पे डिपेंडेंसी बढ़ गई, डिजिटल डिपेंडेंसी हमको देखने को मिले। लोगों के पास डिवाइसेस नहीं है, लोगों ने इंटरनेट शब्द का नाम नहीं सुना, लोगों के घरों पे नेटवर्क नहीं आते हैं, लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, और वो ई एजुकेशन की बात कर रहे हैं। हमारा अभी शिक्षा जो व्यवस्था है, शिक्षा पद्धति जो है हमारी, जो है शिक्षा ढांचा है, वो इसको लेने के काबिल ही नहीं है कि हम ई लर्निंग को अभी अपना सकें, क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा अनइवननेस है। चैलेंजेस की बात करते हैं। अनेबल टू कैच अप विद सिलेबस आफ्टर स्कूल रीओपन, इम्पैक्ट ऑन न्यूट्रिशनल हेल्थ, reduction in school budget, intergenerational learning loss, and benefits were not evenly spread. That is, syllabus up to date नहीं है, उनको न्यूट्रिशनल हेल्थ नहीं है, बजट में कमी है, उनका जो लर्निंग गैप आया कोविड-19 में, वो लिटरेसी भूल चुके हैं, वो नंबरेसी भूल चुके हैं, और उनके जो बेनिफिट्स है वो इवनली स्प्रेड है। That clearly states that India has one of the most complex education system in the world. जब इतने जटिल एजुकेशन सिस्टम में हम रह रहे हैं, तो हमको भी काफी ज्यादा कार्य करने की आवश्यकता है। ये जटिल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम एकदम युवा राष्ट्र हैं, हम बहुत बड़े राष्ट्र हैं, काफी बड़ी जनसंख्या है, और देयर इज अ लैक ऑफ अवेयरनेस एंड रिसोर्सेज। वी नो दैट रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है, हम अवेयरनेस नहीं है, हम बातों को अवेयरनेस नहीं देने में थोड़ा सा डरते हैं, हम बातों को शेयर करने से थोड़ा सा डरते हैं, हमारे अंदर लीडरशिप की कमी है, क्योंकि रिपोर्ट्स तो ये कहती हैं कि 2 में से 1 इंडियन जो है फेक न्यूज रिसीव करता है वाया फेसबुक एंड व्हाट्सएप। जब हम फेक न्यूज रिसीव कर सकते हैं, व्हाई नॉट वी स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट समथिंग गुड? एंड व्हाई आई एम सेइंग दैट इंडियाज एजुकेशन इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स इन द वर्ल्ड, बिकॉज देयर आर किड्स जो कभी स्कूल गए ही नहीं, और एक बार जब वो स्कूल में गए तो जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो काफी अनइवन है, इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी ज्यादा इश्यूज हैं। टीचर्स की बात करो तो 14,000 टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, लेकिन 12% ही टीचर सक्सेसफुली अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर पाते हैं। बात करो स्कूलों के तो 1 लाख से ज्यादा ऐसे स्कूल है जहां पे सिर्फ एक सिंगल टीचर जो सारे सब्जेक्ट सारे ग्रेड पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एक टीचर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे सब्जेक्ट सारे ग्रेड पढ़ाने की, फ्रॉम 1 to 5। हम बात कर रहे हैं ऐसी शिक्षा पद्धति की जहां पे इतनी ज्यादा इनइक्विटी है, जहां पे 65% ऑफ पब्लिक स्कूल डोंट हैव इवन अ स्कूल प्रिंसिपल, यानी एक स्टेक होल्डर का इतना बड़ा पार्ट है ही नहीं। और पेंडेमिक में तो ये चीजें काफी ज्यादा बदल गई। पेंडेमिक की बात की जाए तो 40 से 70% जो रूरल पॉपुलेशन है उनके पास इंटरनेट पे एक्सेस ही नहीं है, एंड 70% बच्चों के पास तो स्मार्टफोन अवेलेबल ही नहीं है। तो हम कैसे क्या करें कि एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आए? हम ये नहीं कह रहे कि एक सिस्टम में चेंज आए, एक बहुत बड़ी पॉलिसी में चेंज आए। हम खुद से क्या कर सकते हैं? एक इंडिविजुअल मैं क्या कर सकता हूं, आप क्या कर सकते हैं? दैट इज अ लीडरशिप क्राइसिस, क्योंकि हम नहीं कर रहे। एक भारत का युवा आज डिप्रेस्ड है, चिंता में है, एंशियस है, लेकिन क्या हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें आजादी दिलाने वाले जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, रानी लक्ष्मीबाई रही हैं, झलकारी बाई रही हैं, या फिर भगत सिंह रहे हैं, या फिर सुभाष चंद्र बोस रहे हैं, या भीमराव अंबेडकर रहे हैं, इन सब ने लीडरशिप ली है, इन सब ने लीडरशिप ली है आजाद भारत को, गुलाम भारत को आजाद कराने के लिए, अखंड भारत बनाने के लिए। अब आजाद भारत में जो बाकी की जो आजादी रह गई है, अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं आजादी अभी अधूरी है, सपने को सब कुछ होना बाकी है, दावी की शपथ ना पूरी है। तो आजादी अभी अधूरी है का मतलब आजादी हमें मिल तो गई, लेकिन बाकी चीजों से आजादी चाहिए। इंडिया शुड बी फ्री ऑफ पॉवर्टी। कैसे होगा? लीडरशिप से होगा। एंड वी नो दैट देयर आर अराउंड 66% ऑफ पॉपुलेशन जो यूथ पॉपुलेशन है, 35 ईयर्स से कम वाली। हम बात करते हैं इंडिया की, मैं एडु इक्विटी की बात कर रहा हूँ। इनइक्विटी को हमने बहुत बार देख लिया। एडु इक्विटी है क्या?
एडुकेटी भारत के लिए है, भारत से है और भारत के द्वारा ही संभव है। भारत कौन? भारत तुम। भारत एक युवा राष्ट्र है, भारत हम सब में है। अगर हम बात करें कुछ लोगों की, इक्विटी और इक्वालिटी में भी अंतर है, जो आप इस चित्र से बेहद समझ रहे होंगे। इक्विटी का मतलब ये है कि सबको समान अवसर प्रोवाइड करना। इक्वालिटी का एक उदाहरण समझता हूं, जैसे मान लो एक स्कूल है, वहां पे इक्वालिटी देनी है, सबको बुक्स बांट दी, लेकिन हो सकता है कि उस कक्षा में 5 बच्चे जो है वो दृष्टि बाधित हैं, दृष्टिहीन है, तो उनके लिए बुक देने का मतलब नहीं है, उनके लिए ब्रेल लिपि जो है, ब्रेल बुक देने का मतलब है। तो दैट इज इक्विटी। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड इक्विटी। जहां पे जितनी जरूरत है वहां पे उतनी जरूरत पहुंचाई जाए, ये होगी हमारे द्वारा अगर हम अवेयर होंगे। पराग अग्रवाल की बात करो, जो है सीईओ ऑफ ट्विटर, गीता गोपीनाथ डिप्यूटी मैनेजर डायरेक्टर ऑफ IMF, they added their name in the growing list of Indians serving at the very top of prominent global organization. काफी ज्यादा इंडिया ने इनके अचीवमेंट को सेलिब्रेट किया, काफी ने डिबेट किया कि इनकी सक्सेस इंडिया को कैसे हेल्प कर सकती है। क्या ये ब्रांड इंडिया बना रहे हैं या फिर रिप्रेजेंट कर रहे हैं लॉस्ट इंडियन टैलेंट? हम जानते हैं अच्छे से कि ब्रेन ड्रेन होता है, एंड भारत में बहुत होता है। ब्रेन ड्रेन में क्या होता है? भारत से जो स्किल्ड लेबर है, स्किल्ड जो पर्सन्स हैं, स्किल इंडियंस बाहर जाते हैं, जिसके वजह से भारत को एक ह्यूमन रिसोर्स लॉस होता है। दैट इज ब्रेन ड्रेन। लेकिन आंकड़ों की बात करें तो काफी चौंकाने वाले, क्योंकि भारत का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगा है, चाहे उनके शिक्षा पे हो, चाहे उनके स्वास्थ्य पे हो, चाहे उनके रखरखाव पे हो। अगर मैं बात करूं आंकड़ों की, तो सिंस 2016 6 लाख इंडियंस गिवन देयर सिटीजनशिप, एंड सिंस 2014 23,000 मिलियन हैव लेफ्ट इंडिया। अगर इंडिया की बात करो तो इंडिया नंबर 1 पे रैंक करता है when it comes to the migration of the rich and the educated, and it account for the causing 65% of the global share, way ahead of China and the Philippines. तो हमें काफी ज्यादा कार्य करने की जरूरत है। हमें बात करता हूं कुछ और चीजों की। महात्मा गांधी कहते हैं कि the man is made up of thoughts, he becomes whatever he thinks, but what we are thinking matters. अगर हम बात करें, अब मैं अरस्तु की बात करूं तो अरस्तु कहते हैं कि शिक्षा की जड़ कड़वी है पर उसके फल मीठे हैं। तो अगर हम बात करें फल मीठे हैं तो क्या चीजें हो रही हैं अच्छी? अब मैं कुछ लोगों की बात करूंगा जिन्होंने काफी स्ट्रगल किया, लेकिन उन्हें काफी अच्छी ऊंचाइयां हासिल कर रही हैं। मैं बात करूंगा कुछ राइजिंग हीरोज की, हमारे स्टूडेंट लीडर्स की। 3 हीरोज की बात करूंगा। अंजलि 12th ग्रेड में पढ़ने वाली एक लड़की, जिसने बेहतरीन तरीके से लीडरशिप का उदाहरण दिया। इसने स्पोर्ट एजुकेशन में वुमेन को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाई, लीडरशिप का पहला रोल। अंजलि ने RTI के राइट ऑफ एजुकेशन के तहत 6 बच्चों का दाखिला कराया स्कूलों में। अंजलि अगर 12th में पढ़ने वाली अंजलि अगर ये कर सकते तो हम क्या क्या नहीं कर सकते। अपूर्व जो 9th क्लास में, प्रजो जो 10th क्लास में, इष्टा दीदी और गौरव भैया जो टीच फॉर इंडिया फेलो है, इन दोनों को लीडरशिप प्रोवाइड करी, इनको इंस्पायर किया ताकि ये काम कर सके। इनका पहला डिबेट कंपटीशन टाटा मोटर्स ने ऑर्गेनाइज किया। कुछ दिन पहले इनके डिबेट कंपटीशन में फर्स्ट रैंक कंसोलेशन प्राइजेस आए हैं। प्राइजेस मैटर नहीं करते, बट जो स्पिरिट इन्होंने दिखाई है, जिस तरीके से ये सामने आए, इन्होंने अपने बातों को रखा, जहां पे इनको नहीं पता था रिबटल राउंड क्या होता है, नहीं पता, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किया, इन्होंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए, चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया। दैट इज लीडरशिप। बात करते हैं अब्बास की। अब्बास एक पोएट है, राइटर है, रैप करते हैं। ये अवेयरनेस फैला रहे हैं एक अलग माध्यम से, एक कला के और एक और पहलू से, जहां पे ये बात करते हैं मेंटल हेल्थ की। अपनी कविताओं के जरिए मेंटल हेल्थ के बारे में बताते हैं। कॉर्पोरल पनिशमेंट पे इन्होंने जो है काफी ज्यादा काम किया है। 12th क्लास का लड़का अगर कॉर्पोरल पनिशमेंट के ऊपर इतनी सारी बातें कर सकता है, औरों को अवेयर कर सकते हैं कि कॉर्पोरल पनिशमेंट क्या है और कैसे तुम उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हो। अवेयरनेस फैलाना, दैट इज लीडरशिप। एंड आई वांट, देयर आर मिलियन ऑफ स्टूडेंट लीडर्स दैट कैन बी मेड, बट द क्वेश्चन इज, आर यू रेडी? So I have 6 things that you can do for a better India, or youth can do for a better India. That is, I will donate resources which are no longer needed to me. I promote social welfare. I will learn moral values from the life sketches and will encourage them. I will do check-ins with children in my family, neighbor, and locality. I am a learner. I will learn, relearn, and unlearn without any rigid beliefs. I will hold stakeholders accountable and functional, and I also know that
also a stakeholder. So my basic objective or conclusion of this talk is, अगर आप इन 6 चीजों में से कोई एक चीज भी कर लेते हैं तो मानूंगा कि मेरा आज का टॉक सफल रहा. अगर आप रिसोर्सेज डोनेट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज की काफी ज्यादा कमी है, अगर आप किसी बच्चे से चेक इन ले लेते हैं, उसके स्किल्स को जान लेते हैं, उसको उसके स्किल पहचाने मदद कर देते हैं, या फिर आप जो है बच्चों को इंकरेज करते हैं सवाल पूछने में, सवालों के जवाब ढूंढने में, क्यूरियोसिटी बढ़ाने में, इंटरेक्शन कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाने में, सो आई विल बिलीव दैट मेरा ये टॉक सफल रहा. So I would say that believe in a youth country. So there is a statement by Swami Vivekanand. Swami Vivekanand say that what I want is my countrymen should have nerves of steel, muscles of iron, and minds like thunderbolt. 100,000 men and women fired with zeal or holiness, fortified with eternal faith in the Lord, and nerved of lion's courage by their sympathy for the poor and the fallen and the downtrodden. Will go over length and the breadth of the land, preaching the gospel of salvation, the gospel of help, the gospel of social raising up, the gospel of equality. स्वामी विवेकानंद 100 और 1000 लोग मांग रहे हैं, मैं आपसे सिर्फ आप मांग रहा हूँ, आप सामने आए, एक कदम बढ़ाएं लीडरशिप की तरफ, काम करें शैक्षिक समानता की तरफ, और देखिए कैसे ये कारवा बढ़ता चले जाता है. बिकॉज वी वांट दैट एजुकेशन बाय विच कैरेक्टर इज फॉर्म, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड इज इंक्रीज, द इंटेलेक्चुअल इज एक्सपेंडेड, एंड बाय विच वन कैन स्टैंड ऑन वंस ओन फीट. क्योंकि हमारे जीवन की अंत की शुरुआत उसी दिन से हो जाती है जब हम गंभीर मुद्दों पर चुप्पी साध लेते हैं, और एजुकेशन से ज्यादा गंभीर मुद्दा कुछ नहीं हो सकता. क्योंकि एक टॉक पे कहा जाता है कि जो 2013 का वो टॉक है, जब भारत को युवा राष्ट्र बोला जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है और एक अच्छी खासी युवा की संख्या है, तब बोला जाता है कि अगर हम शिक्षा पे काम नहीं करेंगे तो एक ऐसा टाइम आएगा जब यही युवा फ्रस्ट्रेट होगा, अनएम्प्लॉयड होगा, अनस्किल्ड होगा, और भारत के लिए एक विनाश का काल होगा. तो हम चाहते हैं शिक्षा के ऊपर कार्य किया जाए, क्योंकि शिक्षा अगर नहीं होगी तो ये काफी ज्यादा समस्याओं को उत्पन्न करेगी. So that is it for this talk. Thank you so much. This is Anand Joshi celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav. Jai Hind. Thank you. Thank you so much, Mr. Anand. What a fabulous talk again. So now we have some questions from our listeners. So first question is from Archana Bharti. She is asking, in the current education system, there is huge gap in the quality of education provided in public and private schools. What are your thoughts on this? Do you think that improving education system will help with this? So basically जो अभी तक मैंने टॉक में बोला है, एक गैप है, बेशक देखने को मिलता है, हर जगह देखने को मिलेगा, लेकिन जो थिंग इज कि क्या हम उसको समझ रहे हैं, और अगर हम खुद समझ रहे हैं कि हम औरों को समझा पा रहे हैं, अगर हमें लग रहा है कि एक लर्निंग गैप क्रिएट हो रहा है, अगर वो एक गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल के बीच में है, क्या हम उसके शिक्षा के स्तर को बढ़ाने पे काम कर रहे हैं, क्या हम उनके स्टेक होल्डर्स को अकाउंटेबल कर रहे हैं, क्या हम उनके पास जाके उनको याद दिला रहे हैं कि क्या चीज किया जाना चाहिए, क्या चीज हो सकती है, क्या हम RTI का, राइट टू इंफॉर्मेशन का सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं. दैट इज इम्पोर्टेंट. थैंक यू. Okay. So the next question is from Ashish Raj. He is asking, if we stop employing foreign engineers, especially from India, then there will be another Microsoft born in India. That's what Bill Gates said about Indian engineers. So how can we say that Indians are unemployable? Could you please repeat it? Yeah. So basically he's asking, if we stop employing the foreign engineers, especially from India, so there will be another Microsoft born in India, or there will be another, like Bill Gates also quoted the same about Indian engineers. So how can we say that Indians are unemployable? मतलब अनएम्प्लॉयमेंट इंडियंस में है, तो उसके लिए आपको क्या लगता है कि मेन रीजन है? गुड. तो जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा था कि जो ये ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जहाँ से लोग जो है बाहर विदेशों में जा रहे हैं और वहाँ पे कार्य कर रहे हैं. मैं मानता हूँ इस बात को, मैं काबिलियत को ही मानता हूँ कि भारतीयों की काबिलियत है, तभी वे इतने बड़े बड़े पदों पे कार्यरत हैं. मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन जब मैं बात करता हूँ कि अगर एक जो खुद का माइक्रोसॉफ्ट भारत बना सके, कि क्यों ना बने, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा या फिर मैं बोलना चाहूंगा उस यूथ को कि आप जो बाहर जा रहे हैं, क्या आप थोड़ा सा संयम रख के, थोड़े से कष्ट से कि अगर भारत में रुक के वही स्टार्टअप, वही थोड़ा ज्यादा एनर्जी के साथ कर पाए तो वो बेहतर होगा.
मेरे कहने का मतलब है बेसिक जो रीजन है वो है हेल्थ इश्यूज, जेंडर इनइक्वालिटी, मनी इज अ फैक्टर, सोशल सिक्योरिटी इज अ इशू। तो अगर इन सब इश्यूज को थोड़ी देर के लिए साइड में रखा जाए एंड एक भारतीय होने के नाते अगर हम भारत में रहें और अपनी जो हमने स्किल सीखी है भारत से, भारत में ही उसको इम्प्लीमेंट करें, भारत में ही रह के उस पर कार्य करें एंड भारत में ही अगर हम सॉफ्टवेयर या फिर कुछ बना सके, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां, तमाम कंपनियां बना सके, बेहतर होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत के जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयबल हैं, भारत के लोग एम्प्लॉयबल हैं, लेकिन जो बड़ी संख्या में जो एम्प्लॉयबल जो भारतीय हैं वे भारत से ही चले जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा ह्यूमन कैपिटल का लॉस हो रहा है और जो भारत में रह रहे हैं उसमें से जो अधिकांश है वो इस शिक्षा पद्धति से जा रहे हैं जो उनको इतनी ज्यादा स्किल्ड नहीं बना पा रही है। थैंक यू। Okay, so the last question we would be taking from Raj Lakshmi Singh. She is asking, don't you think language inequity is most important factor in education inequity? Why are top institutions not teaching in regional languages even after 76 years of freedom? आई डू ऑल्सो बिलीव दैट कि लैंग्वेज इनिक्विटी जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है एजुकेशन इनिक्विटी पे, क्योंकि जब हम बात करते हैं प्रारंभिक शिक्षा की, प्राइमरी एजुकेशन की बात करते हैं तो बच्चा वही सीखेगा जो उसकी मातृभाषा या फिर उसकी जो रीजनल लैंग्वेज में बातें हो रही हैं। तो मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि राष्ट्र जो उसकी जो मातृभाषा है, जो उसकी रीजनल लैंग्वेज, उस पर कार्य किया जाना चाहिए। इसका मतलब ये कतई भी नहीं है कि जो हमारी ग्लोबल लैंग्वेज है उसको दरकिनार कर दिया जाए, ग्लोबल लैंग्वेज का भी अपना एक स्थान है, पर प्रारंभिक रूप में बेहद जरूरी है कि हम जो है मातृभाषाएं जो रीजनल लैंग्वेज है उनको सम्मान दें, उनको उनका स्थान दें एंड उस पे जो है शिक्षा को आगे बढ़ाएं। थैंक यू राजलक्ष्मी फॉर दिस। Okay, so Mr. Anand, thank you for all the questions, and one question is from our side, which is that please tell us about your experience with the GSTS team. So GSTS टीम से मैं जुड़ा था GSTS 17 में। GSTS 17 के बाद मेरी काफी ज्यादा जो जर्नी एकदम से ही चेंज हो गई, काफी ज्यादा चीजें मैंने एक्सप्लोर करी, थैंक्स टू मनीष करमवार सर एंड द होल GSTS टीम एंड माय फ्रेंड्स जिन्होंने अभी लेफ्ट कर दिया है, अभी भी जुड़े हुए हैं। काफी खुशी होती है ये सब देख के। तो जब मैं देखता हूँ जो इनिशिएटिव यहाँ पे देखने को मिलते हैं, देखो चीजें जो लीडरशिप की बात कर रहे हैं यहीं से शुरू होती है। लीडरशिप का मतलब है कि हम एक दूसरे को अवसर दे रहे हैं। मनीष करमवार सर लीडरशिप में एक बेहतरीन काम कर रहे हैं कि वो हर संडे यहाँ पे आते हैं और हमको मौका देते हैं यहाँ पे बोलने का। अगर मैं देखूं यहाँ पे 50 से ज्यादा लोग हैं, अगर 50 ही मैं संख्या गिनूं और वो अगर मेरा आधे घंटे का टॉक सुनने आए, यानी कि यहाँ पे वो 20 घंटे मतलब 50 घंटे यहाँ पे रहे हैं। अगर 50 घंटे रहे यानी कि 2 दिन लगातार कोई मेरी बातें सुन रहा है, इसके कहने का मतलब ये। तो यहाँ पे मेरी बातें कोई इतनी सुन रहा है, मेरी बातों का मान रख रहा है, यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है, अपने चिंतन मनन कर रहे हैं। इससे लीडरशिप का, इससे ज्यादा इसको लीडरशिप को और बढ़ाने वाला कार्य कुछ हो नहीं सकता। तो मैं धन्यवाद देता हूँ GSTS के इस पटल को, प्लेटफॉर्म को, एंड थैंक यू टू ऑल द कोऑर्डिनेटर्स जो इतने अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं। काफी ज्यादा काम होते हैं, पोस्टर डिजाइन, फिर जो बाकी जो हमारे जो स्पीकर्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, हमारे गेस्ट स्पीकर से कोऑर्डिनेट करना, काफी ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं, लेकिन इन द एंड हम ही पॉलिश हो रहे हैं और हम औरों को पॉलिश करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दैट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड आई वांट कि मेरे जो और जो दोस्त जो देख रहे हैं, मेरे काफी ज्यादा मेरे स्कूल के मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पे मैंने काफियों को देखा। सो मैं चाहता हूँ कि वो आगे आए अगर वो यहाँ पे कभी बोलना चाहते हैं, ठीक है। तो आई वांट कि सब एक यहाँ पे लीडरशिप दें। एक यही फील नहीं है, एक जमीनी लेवल पे हम क्या क्या कर सकते हैं उस पे देखने की बात है। थैंक यू सो मच मानवी फॉर दिस क्वेश्चन। Okay, thank you so much, Mr. Anand. Thank you once again.